بلوچستان ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر۔ کوئٹہ میں میزان چوک پر پولیس وین کے قریب دھماکہ، پولیس اہلکار سمیت 5 افراد جاں بحق، 32 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق خودکش بمبار نے پولیس وین کو نشانہ بنایا۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کوئٹہ دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس، زخمیوں کی بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ، صدر نون لیگ شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت اہم رہنماؤں کی واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ لائن آف کنٹرول پر بھارت ایک بار پھر آؤٹ آف کنٹرول۔ بھارتی فوج کی ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ، 1 شہری شہید، بچوں اور خواتین سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں 3 بھارتی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ کئی بھارتی چیک پوسٹوں کو بھی نقصان پہنچا۔ راولپنڈی میں طیارہ حادثے میں شہید پائلٹس اور عملے کی نماز جنازہ چکلالہ گیرجن راولپنڈی میں ادا۔ نماز جنازہ میں آرمی چیف سمیت فوجی افسران اور اہل خانہ کی شرکت۔ گزشتہ شب فوجی طیارہ گرنے سے عملے کے 5 افراد سمیت 18 افراد شہید ہو گئے تھے۔ کراچی میں بارش نے انتظامیہ کے دعووں کا پول کھول دیا۔ سڑکیں اور نشیبی علاقے تالاب بن گئے۔ لٹھ ندی میں طغیانی ملحقہ آبادی ڈوب گئی۔ سادی ٹاؤن میں سیلابی پانی کئی گھروں میں داخل ہو گیا۔ لیاری ایکسپریس وے کے قریب آبادی میں پانی داخل۔ سپر ہائی وے کا ایک بڑا ٹریک اور اطراف میں قائم کئی گوٹ ڈوب گئے۔ پاک فوج بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ مختلف حادثات اور کرنٹ لگنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 21 ہو گئی۔ وزیر اعظم کا کراچی میں بارشوں کے بعد ہونے والے نقصانات پر اظہار تشویش۔ ایک بارش سے کراچی اور حیدرآباد سمندر بن گئے۔ بارش سے سندھ حکومت کی گڈ گورننس کا پول کھل گیا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقابان کی نیوز بریفنگ۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ۔ وزیر اعظم کا صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم سے حکومتی اور اتحادی سینیٹرز کی ملاقات۔ شبلی فراز کو آزاد سینیٹر سے رابطے تیز کرنے کی ہدایت۔ مہنگائی میں پسے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری حکومت کو ارسال۔ پیٹرول 5 روپے 15 پیسے، ڈیزل 5 روپے 65 پیسے اور مٹی کا تیل 5 روپے 38 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز۔ چودھری شوگر ملز کیس کی تحقیقات کا معاملہ۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا صبح نیب آفس لاہور میں پیشی کا امکان۔ نیب نے مریم نواز، حسن اور حسین نواز کو طلب کر رکھا ہے۔ لاہور میں موسلا دھار بارش سے نظام زندگی متاثر، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ صادق آباد میں دریائے سندھ پر سپر بند، 300 فٹ تک دریا بڑھ۔ قریبی آبادی کو خطرہ، ممکنہ سیلاب کے پیش نظر علاقہ مکینوں کی نقل مکانی۔ گلگت میں فیری میڈو کے علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ، زمینی رابطہ منقطع ہونے سے 500 سیاح پھنس گئے۔ انتظامیہ بے خبر، ریسکیو آپریشن شروع نہ کر سکے۔ روڑکی میں ڈھرکی کے قریب گرین لائن ٹرین کی کار کو ٹکر، افسوسناک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پولیس کی گاڑی سمیت 2 گاڑیاں اور متعدد موٹر سائیکلیں تباہ ہو گئیں۔ قریبی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ جائے دھماکہ پر موجود رکشہ ڈرائیوروں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس ایف سی کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ خودکش ہو سکتا ہے۔
दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय दहशतगर्दी भी जारी है। आज फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में एक शहरी शहीद जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। पाक फौज ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में 3 भारतीय फौजियों की हलाकत और मुतादिद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। पाक फौज की कार्रवाई में भारतीय चौकियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। पाक फौज का तरबियती तैयारा रावलपिंडी में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट्स और अमले के 5 अफराद समेत 18 अफराद शहीद जबकि 6 जख्मी हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। रात 1:59 रावलपिंडी के इलाके मोड़ा कालो में कयामत खेज मंजर। पाक फौज का तरबियती तैयारा आबादी पर गिर गया। 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद जाँ बहक। गहरी नींद सोने वाले 13 शहरी भी हमेशा की नींद सो गए। ये हमने जाग रहे थे और हमने खुद देखा था जो इधर से गुजर रहा था ना, हमारे कमरों के ऊपर से जहाज को पहले से आग लगी हुई थी। जाँ बहक मकीनों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। नीचे वाली स्टोरी में भाई था और भतीजा था और भाभी थी। उनका विंडो लॉक था, दरवाज़ा भी लॉक था। बड़ी कोशिश की वो, लेकिन जल गए, खाक हो गया वो। ISPR के मुताबिक शहीद अफसरान और अहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल साकिब, लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम, नायब सूबेदार अफजल, हवलदार इब्ने अमीन और हवलदार रहमत शामिल हैं। महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और बुरी खबर है। उगरा ने आइंदा माह के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 8 रुपए 90 पैसे फी लीटर तक इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को अरसाल कर दी है। उगरा की तजवीज़ के मुताबिक आइंदा माह के लिए डीजल की कीमत में 5 रुपए 65 पैसे, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 15 पैसे, मिट्टी का तेल 5 रुपए 38 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 90 पैसे फी लीटर तक इजाफा तजवीज़ किया गया है। चेयरमैन सेनेट के मुस्तकबिल का फैसला होने में एक दिन बाकी रह गया है। सेनेट का इजलास 1 अगस्त को होगा, जिसमें अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी। सेनेटर्स को मुत्तहिद रखने के लिए आज फिर हिज़्ब इख्तिलाफ ने बैठक लगाई, जबकि हुकूमत ने भी सादिक संजरानी की कुर्सी बचाने के लिए कमर कस ली है। सादिक संजरानी कुर्सी पर रहेंगे या नहीं, चेयरमैन सेनेट के मुस्तकबिल का फैसला होने में एक दिन बाकी। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन की एक और बैठक। मौला बख्शांडियो कहते हैं अब कोई फरोख्त नहीं होगा। इस वक्त जितने भी मेंबर हैं हमारे 21 है, पता नहीं 22 हैं, उस 21 उसमें से मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब की मौजूदगी कोई एक मेंबर भी बाहर जाए। उधर हुकूमत पुरुमीद। कायदे अवान ने दावा किया अपोजिशन के वोट भी उन्हें मिलेंगे। जितने भी सेनेटर्स हैं, मैच्योर सेनेटर्स हैं, बावकार सेनेटर्स हैं और मैं न कि वो उनकी जो सोच है वो बड़ी पॉजिटिव है और वो इस हाउस को देख रहे हैं। वजीर आजम ने भी शबली फराज को आजाद सेनेटर से राब्ते तेज करने की हिदायत कर दी। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने फजलुर रहमान पर फिर बाउंसर्स बरसा दिए। कहती है फजलुर रहमान आजकल मिलियन की बातें कर रहे हैं, इन्हें मिनिस्टर इनक्लेव में गुजारे 15 साल की बहारें याद आ रही हैं। मौलाना साहब आजकल वो मिलियन की बात कर रहे हैं। 15 साल जो मिनिस्टर इनक्लेव की बहारें हैं वो भूल नहीं पा रहे, तो वही उन्हें सता रही हैं। वो वापस आने के लिए वहाँ बेचैन है। बुलेटिन में अब जिक्र कराची में होने वाली बारिश का, जिससे नदी नाले भी भर गए। थड्डो डैम और लठ नदी में तुगयानी से पानी रिहायशी आबादी में दाखिल हो गया, जिसके बाद मदद के लिए पाक फौज को आना पड़ा। शहर कायद में बारिश का दूसरा रोज, नदी नालों को आ गया जोश। लठ नदी में तुगयानी मुल्हिका आबादी डूब गई, मदद के लिए पाक फौज को आना पड़ा। अचानक बारिश के पानी से घरों में पानी घुस गया है, सब घर वाले परेशान हैं। अचानक ये पानी आया, इसके बाद ये हो कि सामने मेरी बाउंड्री उधर बकरियां थी, वो थी, उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला जी मेरी बकरियां सब डूब गई हैं और ना ऐसे इधर आप मत आना, बहुत पानी है।
सादी टाउन में सैलाबी पानी की तबाही, गांव रसूल बख्श डूब गया। मेयर कराची ने मलबा सिंध हुकूमत पर डाल दिया। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिली है, ना डिस्ट्रिक्ट को मिली है ना केएमसी को मिली है। वादे तो बहुत किए गए थे, हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है जिससे ये मसले हल हो सकते हैं। गटाब में ठडो डैम ओवरफ्लो होने से पानी का रेला सुपर हाईवे पर M9 तक जा पहुंचा। कराची से हैदराबाद जाने वाला एक ट्रैक मुकम्मल बंद हो गया। लियारी नदी में भी छलक पड़ी, पानी लियारी एक्सप्रेसवे के करीब आबादी में दाखिल हो गया। कराची में गुज़िश्ता रोज बरसात के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। नदी नाले भरे हैं, पानी अंडरपासेस में जमा है, गटर मुसलसल उबल रहे हैं और शहर से के इलेक्ट्रिक लापता है। 24 घंटे बाद भी अवाम को बिजली की तलाश है। कराची में बारिश का असर, कराची का हो चुका है हशर नशर। अंडरपासेस भरे हैं, पानी घरों में खड़ा है, गली मोहल्लों का हाल वैसे का वैसा है। बरसात की वजह से पानी नाले आप देख रहे हो आप क्या हाल है, कोई निज़ाम ही नहीं है। ये चाहते तो कब से बारिश की पेशगोई की गई थी, इसको सफाई कर सकते थे। रास्ते भी खराब है, पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। मवेशी मंडी की हालत बद से बदतर है। रही सही कसर के इलेक्ट्रिक ने पूरी कर दी। 24 घंटे गुजर गए, बिजली बहाल न हो सकी। बारिश होने के बाद तो कोई उसका हिसाब ही नहीं है। इतनी लाइट जा रही है, थोड़ी देर आती है, दोबारा बारिश होती है, फिर चली जाती है। बिजली का तो बस हर जगह पे ही मसला है और बिजली तो अभी भी नहीं है। 24 घंटे लाइट नहीं थी। आप यकीन करें कि हमारी अपील है हुकूमत पाकिस्तान के लोगों से कि आप मेलों में तो सो रहे हो, लेकिन गरीब का भी आप ख्याल करो। न कोई पूछने वाला है, न कोई बताने वाला। शहरी कहते हैं इन इदारों को खत्म कर दें ताकि शहरी अपना इंतजाम खुद कर लें। कराची की बारिश 21 अफराद की जिंदगियां निकल गई, लेकिन ये अमवात डूबने से नहीं बल्कि करंट लगने से हुई हैं। कराची इलेक्ट्रिक के कातिल तारों ने जिंदगियों की डोर ही काट डाली। के इलेक्ट्रिक या किलर इलेक्ट्रिक, मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब इदारे ने कीमती जिंदगियों की रोशनियां छीन ली। बिजली के नंगे तार और बंडल केबल्स बारिश में शहरियों को मौत बांटने लगे। नाजमाबाद पापोश नगर में करंट लगने से 28 साला नौजवान चल बसा। हम लोग FIR कटवाने गए तो FIR नहीं काटी गई कि तुम्हारे भाई का चीरा फाटी होगी, उसका ये गुर्दा निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे। इतना प्रेशराइज किया गया कि हमने FIR वापस ले ली कि हमारा भाई तो इस दुनिया से गुजर गया, मरने के बाद हमको और अजियत नहीं दे सकते। नॉर्थ कराची में 9 साला बच्ची, काला पुल के करीब 35 साला शहरी, खारादर में भी एक शख्स करंट लगने से जाँ बहक हो गया। के इलेक्ट्रिक का अमला इलाकों में बंडल केबल्स तो डाल देता है, लेकिन बारिश के बाद पोल्स में आने वाला करंट जिंदगी की बत्ती गुल कर जाता है। किलर इलेक्ट्रिक अपनी रविश कब बदलेगा? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अवाम आला हुक्काम से सवाल कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक ने कराची में मजीद अंधेरों की वार्निंग दे दी। सारिफीन को आगाह कर दिया कि लख डैम ओवरफ्लो होने से केडी ग्रिड स्टेशन पर सूरत हाल संगीन हो गई है, जिसके बाइस मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो सकते हैं। शहर में पहले ही कई इलाकों में ताहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी है, जबकि कुछ इलाकों में कई घंटों के बाद बिजली आई है। अब तो के इलेक्ट्रिक ने बिजली बंद करने की वजह भी ढूंढ निकाली है। जो इलाके मुतासिर हो सकते हैं इनमें गुलशन इकबाल, अजीजाबाद, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, मलीर, शाह फैसल, सरजानी टाउन और शादमान शामिल है। इसी पर बात करेंगे तर्जुमान के इलेक्ट्रिक नूर अफशा से। नूर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ये फरमाइएगा कि कब से कब तक जो है ये बिजली बंद की जाएगी, जो अलर्ट नया जारी किया गया है? देखिए जी, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो लास्ट डैम थी सुपर हाईवे के करीब, वो ओवरफ्लो हो गई है मॉनसून की वजह से। ये फ्लड वाटर जो है ये के इलेक्ट्रिक के केडीए ग्रिड स्टेशन पर पहुंच गए हैं, जो गुलज़ारे हिजरी में लोकेटेड है। और ये इंस्टॉलेशन हमारे लिए एक बहुत अहम इंस्टॉलेशन इसलिए है क्योंकि ये एक इंटरकनेक्शन पॉइंट है के इलेक्ट्रिक और नेशनल ग्रिड यानी कि NTDC के साथ। पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो चुका है और हमने इंतजामिया के सपोर्ट के साथ बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, जिनमें सैंड बैग्स इंक्लूडेड है, पानी के मोटरें इंक्लूडेड है और ट्रेंचेस भी इंक्लूडेड है, ताकि और पानी ग्रिड में एंटर ना हो।
हिफाजती तौर पे हमने अपने खुद कुछ जो फीडर्स ये ग्रिड सप्लाई करता है उनको सप्लाई बंद की है, और जल्द अज जल्द हमारी कोशिश है कि जो ग्रिड में पानी दाखिल है उसको निकालें और इन फीडर्स को बहाल करें। नूर अफशा साहिबा, कितना वक्त दरकार होगा इस पानी को निकालने के लिए, और जो शहरी हैं वो कब तक बिजली से महरूम रहेंगे? कोई दौरानिया तो होगा इसका? देखिए, हमारी पूरी की पूरी कोशिश है कि ये काम जल्द अज जल्द किया जाए, लेकिन आई एम श्योर समझती होंगी कि ये एक बहुत ही अनफोर्सीन अनप्रेसिडेंटेड इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जो हमारे केडीए ग्रिड पे इस फ्लड की वजह से। हमारी टीम ग्राउंड पे मौजूद है, हमें पाकिस्तान आर्मी का भी सपोर्ट मिल रहा है ताकि ये मोटर पंप के जरिए पानी को निकाला जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज मुझसे गुफ्तगू करने के लिए। अभी आपको बताएं कि कराची में बारिश का सिलसिला शाम से रुक चुका है, मगर मुख्तलिफ इलाकों में अब भी पानी सड़कों पर जमा है। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस। जी बिल्कुल, शहर में 2 रोज़ तक मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी रहा, तो शहरी इंतजामिया के दावों की भी कली खुल के रह गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंजूर कॉलोनी महमूदाबाद के इलाके में, जहाँ पर गलियाँ जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। काफ़ी बारिश का पानी जमा है जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर गली में देख सकते हैं कि कितना पानी जमा है। शहरियों का यहाँ से गुजरना महाल है। ये रिहायशी इलाका है, दोनों अतराफ जो है वो मकानात कायम है। शहरियों को रोज़ाना यहाँ से गुजर होता था, लेकिन अब यहाँ पर बारिश का पानी इतना जमा है कि शहरी यहाँ से गुजरने से परहेज कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर और भी गलियां हैं, दीगर और भी मुकामात हैं शहर के जो कि इसी तरीके के का मंजर पेश कर रही हैं, जहां पर बारिश का पानी काफ़ी जमा है। सीवरेज की लाइनें जो हैं वो भी काफ़ी भर चुकी हैं। इसके साथ साथ जो है वो 2 रोज़ तक जब बारिश का सिलसिला जारी रहा तो मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात भी पेश आए, जिसमें 20 से ज़ायद अफराद जाबाक हुए, लेकिन निकासी आपका इंतज़ाम के बराबर है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जी, और अब आपको दिखाते हैं शहर कराची का तस्वीरी मंजरनामा। बारिश के बाद अहम शाहराहों और नशेबी इलाकों में क्या सूरत हाल रही, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तस्वीरें जो खुद बोलती हैं। मॉनसून की पहली बारिश से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। कराची ने समंदर का रूप धार लिया। नदी नाले बिपर गए, हद्दे निगाह पानी ही पानी। सड़कें, गलियां, घर सब डूब गए। कई फीट पानी में गाड़ियां चलाना नामुमकिन हो गया। पुराना और बोसीदा सीवरेज सिस्टम बना अवाम के लिए जहमत। नशेबी इलाकों में पानी ने घरों में बसेरा कर लिया। अवाम घरों में मौजूद कीमती सामान से भी हाथ धो बैठे। अलर्ट जारी होने के बावजूद इंतजामिया गायब। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। सैलाबी पानी के बाद अगला बसेरा बीमारियों का होगा। हर एक तस्वीर 1000 लफ्जों पर भारी है। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर जमा होने वाले पानी की बरवक्त निकासी ना हुई तो वबाई अमराज का सबब बन सकता है। तिबी माहिरीन ने गंदे पानी से मुहतात रहने का मशवरा दिया है। आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान शेख इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, देखिए कराची में बरसात के बाद जहां दीगर मसाइल का शिकार हुआ है ये शहर, उसके साथ ही बरसात का पानी जमा होने से बहुत सारी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जा बजा जो सड़कों पर पानी और गलाजत जमा है उसकी वजह से ख़ास तौर पर बच्चों में जो है वो स्किन प्रॉब्लम, इसी तरह डेंगू और चिकनगोरिया, ये तमाम चीज़ें जो है सामने आ सकती हैं। इसके साथ साथ जो है वो चूँकि बकरा ईद कुर्बान की आमद है और जानवरों को लाने का सिलसिला जारी है। जानवरों को हाथ लगाने से जो ख़तरनाक बीमारी सामने आती है वो कॉन्गो वायरस है, उससे भी लोग मुतासिर हो सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बताऊं कि टाइफाइड का भी शिकार हो सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल देखी जा सकती है कि ये कराची का ही एक इलाका है, एक नशेबी इलाका है जहां पर पानी जमा है, और ये सूरत हाल कोई नई बात नहीं है शहर कायद के बासियों के लिए। सूरत हाल बारिश के बाद अक्सर इलाकों में देखने को आती है, और बरसात के बाद जो है वो सबसे बड़ा जो मुश्किलात का सामना है इस शहर के लोगों को करना पड़ता है वो बीमारियों की सूरत में है। ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं और ख़वातीन हैं उनको इस मौसम में ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तिब्बी माहिरीन से हमारी गुफ्तगू हुई है, उनका कहना है कि टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू समेत दीगर अमराज जो है वो इस मौसम में जन्म ले सकते हैं। इस मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि गंदे पानी से और इस तरह के जो सूरत हाल है उसमें एहतियात बरती जाए।
और ख़ास तौर पर ईद कुर्बा का मौसम है, जानवरों का लाने का सिलसिला जारी है, जानवरों को हाथ लगाने से गुरेज किया जाए और मवेशी मंडी जाते वक्त भी जो है इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए कि कॉन्गो जो कि जानवरों के जिस्म पर मौजूद चीचड़ के काटने से होता है वहाँ से उससे दूर रहा जाए, क्योंकि ये जानलेवा वायरस भी साबित हो सकता है। अब तक कॉन्गो से 6 अफराद की जानें जो है वो जा चुकी हैं, जबकि डेंगू से भी 4 अफराद मुतासिर हो चुके हैं और 4 अफराद जो है वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं। इसी तरह कॉन्गो वायरस, डेंगू, चिकनगुनिया और टाइफाइड समेत दीगर वायरस भी इस गंदे पानी से सामने आ सकते हैं। जी, कराची में मॉनसून के पहले स्पेल ने पूरे शहर को भिगा दिया। कल शुरू होने वाली बारिश आज भी जारी रही। किस इलाके में कितने बादल